आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उमर अब्दुल्ला ने कहा, आइंदा हुकूमत पर जम्मू के लोगों को मलकियत का एहसास दिलाने की होगी जिम्मेदारी। रियासत की बहाली के लिए मरकज से आईनी तरीके से करेंगे रजू। तारिक हमीद करा और भरत सिंह सोलंकी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत से मुलाकात कर उन्हें जीत पर पेश की रस्मी मुबारकबाद। 5 नुमाइंदों को एलजी के जरिए मुंतखब करने के अमल को करार दिया गैर आईनी। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अनंतनाग में लापता फौजी जवान की गोलियों से छलनी लाश की बरामद। अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि आइंदा हुकूमत पर जम्मू के लोगों को मलकियत का एहसास दिलाने की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये किसी फर्द या किसी जमात की हुकूमत नहीं है बल्कि अवाम की हुकूमत है। उन्होंने ऐलान किया है कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत कानून साज अराकीन की मीटिंग मुनक्किद होगी जिसमें रुकन मुंतखब किया जाएगा और इसके बाद हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद का रुकन भी मुंतखब किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत साजी के बाद वो कानून साज असेंबली इजलास में करारदाद मंजूर कर यहाँ रियासत के दर्जे की बहाली के लिए मरकज से रजू करेंगे। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की बहाली पर अपना मौक़िफ़ पर कायम है। Will be less in number. आप क्यों हमसे ये बात करवा रहे हो? अब मैं आपको नंबर दूंगा, कल को उनको बुलाया जाएगा, तंग किया जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक आध ने हमसे बात की है, हमारी बातचीत उनसे जारी है और जब वो आएंगे तो हम आपसे वो बात छुपा तो रख नहीं पाएंगे। When do we expect the government formation? First and foremost, wait for the legislative party meeting, which will take place tomorrow. Subsequent to the legislative party meeting, there will obviously be the alliance meeting. It will determine the leader of the alliance. The leader of the alliance will then, I assume, take letters of support, go to Raj Bhavan, stake a claim and request the LG to fix a date for the swearing in. But I would like that to happen as soon as possible because we've been without an elected government since 2018. Time has come that we get back to work. So the legislative party meeting will be held tomorrow? Inshallah tomorrow. Farooq Saab said that you will be the CM. I am very grateful for the confidence that he has reposed in me. But that decision is of the legislators to make. It is a decision of the alliance to make. I love my father dearly and I'm very grateful for the support that he has shown me yesterday. But finally, the say has to be of the legislators, and I'm always one to do things by the rules and by the book. This is how the procedure that has to be followed, and that's what will be done. But if you become the chief minister, what would be your top But priority? I don't. Okay, when? You know me. I don't give categorical answers to hypothetical questions. Whichever chief minister is sworn in the next few days, obviously there will be two sets of priorities. One is legislative, which will be determined by the members of the Legislative Assembly when the session is called. But the other is government related. And my own suggestion or my own word of advice to the incoming government will be that the first business of the cabinet should be to pass a resolution asking for statehood to be restored to Jammu and Kashmir, and the Chief Minister should travel to Delhi with that resolution, call on the senior leadership of the country and ask them to fulfill their promise, because it is the Honourable Prime Minister, the Honourable Home Minister and others who have promised the people of Jammu and Kashmir statehood. Nowhere did they say that statehood will be restored only to a BJP government or statehood will be restored only to a government that has BJP members. They said statehood will be restored to J&K, and that is what we hope will be done. So are there any plans of meeting LG in the coming Look, days? you can't form a government without meeting the LG. So when are you Whoever planning? has to stake claim will have to meet the LG. So when are you अगर बिना planning? LG से मुलाकात किए हुए यहाँ हुकूमत बना सकते थे तो हमने 6 साल पहले ही हुकूमत बना ली होती, लेकिन वो सूरत हाल बन नहीं सकती। तो पहले जैसे मैंने कहा लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होने दीजिए, अलायंस की मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद जो लीडर तय होता है वो एलजी साहब से वक्त लेके एलजी साहब से मुलाकात करेंगे।
Yalvaracı içecekler bir yanına bir kere बड़ा मुद्दा रहा था इन इलेक्शन में, उस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है, वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। ये मतलब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाएअमल और आगे भी यही रहेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करहा और कांग्रेस के जम्मू कश्मीर इंचार्ज भगत सिंह सोलंकी ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है और जीत के लिए दोनों को रस्मी मुबारकबाद पेश की है। हुकूमत तश्कील के हवाले से तारिक हमीद करहा ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कानून साज की मीटिंग के बाद इस पर कोई फैसला किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए 5 अराकीन को मुंतखब किए जाने के अमल पर उन्होंने इसे गैर आईनी करार दिया है। जी के साथ यहाँ डॉक्टर फारूक साहब को और उमर साहब को फॉर्मल तरीके से मुबारकबाद कहने आए थे। इसके बियॉन्ड अभी कोई बात नहीं है। वो जैसा कि कल उमर साहब ने कहा है कि उनकी फॉर्मल तरीके से जो लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी उसके बाद वो अलायंस पार्टनर्स से बात करेंगे, तो लेट दैट हैपन। पहले इनकी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी, उसके बाद वो हमसे जो भी मामलात हैं कि फॉर्मेशन के बारे में लेटर ऑफ सपोर्ट है और वो उसके बाद होगा। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल तरीके से सोलंकी जी के साथ यहाँ उनको मुबारकबाद देने आए थे। तो क्या गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर कोई बातचीत हुई है? मैं कह रहा हूँ कि अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। वो तब होगी जब अपना पहले ये लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग करेंगे, फिर वो अलायंस पार्टनर से बात करेंगे जिसमें लेटर ऑफ सपोर्ट वगैरह का सारा मामला जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मुंह मीठा हुआ है। नॉमिनेट किए गए हैं, आपको लगता है कि सॉरी, जो 5 एमएलए नॉमिनेट किए गए हैं एलजी की तरफ से, आपको लगता है कि उससे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं काफ़ी देर से ये मेंटेन करता आया हूँ कि दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक, और उसके बाद में हमने एक कार्रवाई शुरू की है। लेट अस सी कि उसमें कहाँ तक हम कामयाब होते हैं, लेकिन जहाँ तक उनका इंडक्शन और उनका सपोर्ट टू बीजेपी होगा, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। I don't find any such problem arising due to that. Thank you, sir. Thank you. नौशहरा असेंबली हल्के से जीत हासिल करने वाले सुरेंद्र चौधरी ने आज कहा है कि इंतखाबात में उन लोगों को शिकस्त मिली है जिन्होंने दफा 370 की मनसूखी और रियासत को मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाके में तब्दील करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया था। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जानिब से जो भी फैसले लिए गए वो अवाम मुखालिफ थे। उन्होंने उनकी भरपूर हिमायत के लिए अवाम का भी शुक्रिया अदा किया है। ये बड़ा चेहरा कौन सा था? ये मीडिया का बनाया हुआ बड़ा चेहरा था, लोगों का बनाया नहीं था। जम्मू कश्मीर का बनाया हुआ चेहरा नहीं था। अगर जम्मू कश्मीर का बनाया हुआ चेहरा था तो आज निशारा में कैसे हार गया? जिस बीजेपी के इस प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा कि 370 तोड़ना और स्टेट को तोड़ना, यूटी बनाना, ये सही फैसला था। आज निशारा के लोगों ने दिखा दिया ये जम्मू कश्मीर का सही फैसला नहीं था। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस फैसले को नहीं माना था, क्योंकि आज बिहार अगर स्पेशल स्टेटस मांग रहा है तो हमारे पास तो पहले स्पेशल स्टेटस था। ये स्पेशल स्टेटस कोई उग्रवादियों का स्पेशल स्टेटस नहीं था, हमें किसी पार्टी ने नहीं दिया था, हमें महाराजा हरि सिंह ने दिया था। ये स्टेट जो आपने तोड़ी, यूटी बनाई, हमने हमेशा देखा यूटी से स्टेट बनते हुए, लेकिन आपने स्टेट तोड़ के यूटी बनाई। आज बीजेपी की हार, ये यहाँ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हारने की वजह यह है, बेशक 4 लोग वहाँ से जम्मू से जीत जाएं, लेकिन अमूमन जो प्रदेश अध्यक्ष आ रहा है, जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था, आज उसकी हार दिखलाती है कि जम्मू कश्मीर में जो भी फैसले यहाँ पे लिए गए वो जम्मू कश्मीर के विरोध में थे, हमारे बेरोजगार बच्चों के बेरोजगार में थे, हमारे बेरोजगार बच्चों के खिलाफ थे, हमारे किसानों के खिलाफ थे, हमारे छोटे व्यापारियों के खिलाफ थे। इसलिए ये जो फैसला आज जो हार हुई है, ये बीजेपी का
370 तोड़ना और स्टेट को तोड़ के यूटी बनाना, उसके खिलाफ एक रेफरेंडम है। इतनी उम्मीद थी जितना प्यार लोगों की तरफ से मिला जनाब, जहां पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन साथ दे रही हो निशारा के अंदर, आपका डीआईजी, आपका एसएसपी, आपका डीसी, आपके जितना भी पुलिस अमला जमला था यहाँ निशारा में, जो पूरा अमला जमला था पूरा का पूरा वहां पे बीजेपी को जिताने में लगा था। सुरेंद्र चौधरी के लोगों ने उनके खिलाफ जाके यहाँ पे ऐसी इनकी गाड़ियों में सब कुछ हुआ है, पुलिस की गाड़ियों में हुआ है, वहां के एसएचओ की गाड़ियों में हुआ है, ये जो कुछ हुआ है उसके बावजूद भी निशारा के लोगों ने जीत लाई है वहां पे। मैं अपने लोगों का आभारी हूँ, मैं अपने माँ बाप का आभारी हूँ, मैं उस माता रानी का आभारी हूँ, मैं उस वाहिगुरु का आभारी हूँ, उस अल्लाह का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे जिताया। मैं अपने उन गरीब लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने इनके पैसे और शराब को दुत्कार दिया और सुरेंद्र को चौधरी जी को जिता दिया। गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, वो गाना सुनना चाहेंगे आपसे हम। वो गाना तो आपको पता ही है, आपसे सुनना चाहेंगे। गड्डी जावे पुंछ जोरी मैं तका चोरी चोरी ओ नारो बावला ओ नारो बावला। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में एक बड़ी जीत के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में उसके कारकुनान और रहनुमा में खुशी का माहौल है। इसी तनाजुर में आज उनके हमायतियों की एक बड़ी तादाद ने गुपकार रिहाइश पर पहुंचकर पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला को इस कामयाबी पर और जीत पर मुबारकबाद पेश की है और उन्हें गुलदस्ते पेश किए गए हैं। याद रहे कि कल जारी हुए असेंबली इंतखाबात में के नताइज में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा 42 सीटें हासिल की थीं, जबकि उसकी इत्तेहादी जमात कांग्रेस ने 6 और सीपीआईएम ने 1 सीट पर जीत हासिल की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से एक लापता फौजी जवान की गोलियों से छलनी लाश बरामद की है। इतलात के मुताबिक इलाकाई फौज के जवान हिलाल अहमद भट्ट की इतला मिली थी कि वो आज अनंतनाग के अतरासू इलाके के संगलान जंगलाती इलाके से उसकी लाश बरामद हुई है। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दीगर एजेंसियों के साथ मिलकर काजवान जंगल इलाके में कुकरनाग में 8 अक्टूबर को एक मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद ये लाश बरामद हुई है। वादी कश्मीर में आज से लेजेंड लीग क्रिकेट के आखिरी मरहले का आगाज हो रहा है, जिसमें कई साबिका बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इसी हवाले से ग्रेट स्पोर्ट्स इंडिया लिमिटेड ने लेजेंड लीग क्रिकेट 2024 से शराकतदारी की है। इस सिलसिले में जानकारी दी गई है कि इस लीग में मैच के बेहतरीन खिलाड़ी को कश्मीर विलो बल्ला इनाम के तौर पर दिया जाएगा। सबसे पहले खुशी की बात कश्मीर के लिए यह है कि इतने ज्यादा इंटरनेशनल स्टार्स आज कश्मीर में 40 साल के बाद ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक हमारे टूरिज्म को फरोग मिलेगा। मैं उस एंगल से इसको देख रहा हूं कि कश्मीर की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा इसका। कश्मीर की इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव असर है। इतने सारे प्लेयर्स बाहर से आ रहे हैं, वो कश्मीर का मुशाहिदा लेंगे, कश्मीर की ब्यूटी का मुशाहिदा लेंगे और अपने मुल्क में अपनी जगह पे जब जाएंगे, क्योंकि हमारे मैच के दौरान भी क्लिप्स जाएंगी कश्मीर की, तो उन लोगों को जिनको कश्मीर की खूबसूरती का मालूम नहीं है उनको भी पता चलेगा और हमारे कश्मीर में दौड़ते दौड़ते आएंगे और हमारी टूरिज्म पे एक पॉजिटिव इफेक्ट है। उसके अलावा जब आप स्पोर्ट्स पे नजर डालेंगे, इट्स क्रिकेट एंड वी आर रिलेटेड टू क्रिकेट। हमारा एक हदफ उठाया है हमने कि हम क्रिकेट को एक अच्छी जगह पे पहुंचा के दिखा देंगे कश्मीरी क्रिकेट को, चाहे वो कश्मीर का बल्ला हो, चाहे कश्मीर का बल्लेबाज हो, चाहे कश्मीर का खेल हो, तो उसमें हम अपना योगदान दे रहे हैं। एक ये इस एंगल से कि अगर हमने इंटरनेशनल बैट अपना लिया है, इंटरनेशनल 5 वर्ल्ड कप अभी तक कश्मीर विलो खेल चुका है, नंबर 1। नंबर 2, इस सीरीज से हमारी जो क्रिकेटर्स है उनका मनोबल बढ़ जाएगा, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा कि हाँ वी हैव सर्टेन फ्यूचर देयर, एक अनसर्टेनिटी ही है। नंबर 3, इसमें हमने एक और टुवर्ड सोसाइटी ये भी कदम उठाया है कि वी विल प्लांट 6 ट्रीज फॉर एवरी 6 हिट इन कश्मीर। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमने इस लीजेंड्स लीग के स्पॉन्सरशिप में उठाए हैं। बाकी आप भी एंजॉय करें और देखें एक इंटरनेशनल क्रिकेट जो होता है वो किस लेवल पे होता है, और ना कि इसमें खाली इंटरनेशनल प्लेयर्स, जो हमारे लोकल ब्रॉडकास्टर्स हैं, जिसमें हमारा बीपीएल हुआ, जिसमें हमारी बारामूला प्रीमियर लीग होती है, वुलर लीग होती है, उसमें जो ब्रॉडकास्टर्स, कमेंटेटर्स, उनमें जो ये जो हमारे लोकल लड़के हैं कश्मीर के, वो भी देखें, वो भी अपना उसमें एक्सपीरियंस उठाएं और वो भी देखें कि हम अपनी लेवल को, अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ है उनको कितना अच्छा कर सकते हैं ताकि हम भी उस लेवल के बन जाएं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।